Good evening, everyone. Or should I say Kombawa? Okay. I'm really glad to see all of you are really practicing well. So today is our third session, and I'll request the new candidates to mark their attendance. You have to write your name, your location, and your educational qualification. Everyone, please mark their attendance. Okay. Now I'll request Sankalpa sir to take over the mic, and Sankalpa, please, you can start your lecture now. Hello, am I audible? Yes, you are clearly audible. Okay, 1 minute. Is my screen visible? Okay. Minasan konbanwa. Okay, so minasan konbanwa means good evening, everyone. So before we'll start today's lecture, I think we'll quickly revise what we learned in the earlier two lectures. Okay. So जापान को जापानीज में क्या बोलते हैं? No answers. What is Japan called in Japanese? Correct. इंडिया इंडिया को क्या बोलते हैं जापानीज में? Not Indio, it should be Indo, correct. Yeah. So इंग्लिश को क्या बोलते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज को? ईगो, correct. So then numbers, we'll go to numbers. 7 के दो नंबर्स है, 7 को दो इसमें प्रोनाउंस सकते हैं, वो दोनों लिखो. Nana, correct. And the other one? Nana and Shichi, correct. And what about 4? 4, not 10. Ju is for 10. She and Yon, correct. So the numbers are Rei, Ichi, Ni, San, Shi or Yon, Go, Roku, Shichi or Nana, Hachi, Kyu, Ju, then Ju, Ichi, Juni, Jusan. Then how will you say 45? 45. 45, not only 5, 45. Not Yong, should be Yon Jugo, 4 into 10 plus 5. Okay. Yon Jugo, 4 into, yeah. So it should not be Shin, okay? She, sorry. Because she, इसमें she नहीं यूज होएगा. 10 के इसमें सिर्फ यूज होएगा, she यूज नहीं होएगा. And what about 70? 70 को कैसे लिखोगे? कैसे बोलोगे जापानीज में? Nanaji. Okay, so 45 is Yeonju Go, 70 is Nanaji. Okay, so then after that, how will you introduce yourself? Anyone can introduce this in the chat.
Correct. Vatashiva Maitre desu. Vatashiva Kadam desu. Correct. Yeah, correct, correct. Or in formula you can say Hajimashite Vatashiva Sankarupu desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. If you have to say in a formal way, but now it is general introduction, so I guess all are correct. Then कल को क्या बोलते हैं? आष्टा. Correct. Oh yeah. कल tomorrow को क्या बोलते हैं? Sorry, I should have said in English. आष्टा. Correct. What about day before yesterday? Uttotoi. Correct. Then what about day after tomorrow? Asatte. Then what 4 seasons in Japan? What are the 4 in Japan? 4 seasons in Japan. There are 4 seasons, right? Last class I explained 4 seasons. Correct. Haru, which is spring. It's not Huru, it's Haru. Okay. Haru Natsu Aki Fuyu. Correct. Haru is spring, Natsu is summer or rain, autumn, and Fuyu is winter. Okay. Then what is today's day? What is today's day? Muk correct, Mukuyobi. और संडे को क्या बोलेंगे? So days of the week are Getsuyobi Monday, Kayobi Tuesday, Suyobi Wednesday, Mukuyobi Thursday, Kinyobi Doyobi Saturday, and Nichiyobi Sunday. Then what is this month? Correct, which is February. Okay. Then अभी जब आप एंटर क्लास में तो आप कौन सा ग्रीटिंग बोलने वाले थे? किसने तो गलत लिखा था? Should be konnichiwa, it should be konbanwa because I guess it's evening now, 2 o'clock. Okay. So instead of konnichiwa, you can say kon. Okay. So we'll start this lecture. So in today's lecture, we'll learn script, means how to write the script. Okay. So this is the hierarchy. So this is, we'll learn this A, E, U, A, O, and then okay. So ये बेसिक 5 टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स है उनके हिरागाना स्क्रिप्ट के, क्योंकि इसमें ही बाकी सब भी है, मतलब आ के नीचे का है तो उसके सा. ओके. सो दिस आर द मेन phonetics used there. Okay. Kind of vowel. So this is then E, U, A, and O. A, E, U, A, O. Okay. So these are the vowels. Okay. So this is how Japanese people write. Okay. These are the general strokes. Okay. So here you can see okay. So इधर तुम लोग S देख सकते हो. This represents stop मतलब इधर तुम लोग को पेन रोकना है. फिर इधर भी S है और फिर इधर J R है. R मतलब वहाँ
स्टॉप नहीं करना आपको, पेन ऐसे रिलीज. यू कैन सी देयर इज अ टैपरिंग एट द एंड. ओके, सो इधर रिलीज, आर रिप्रेजेंट्स रिलीज. फिर इधर ब्रश है, ब्रश अप है, बी मतलब ब्रश अप. अप मतलब आपको ब्रश ऊपर करना है, पेन जरा सा ऊपर करना है. ओके, एंड दिस आर द नंबर्स. ओके, सो दिस नंबर, सॉरी, ये स्ट्रोक ऑर्डर है. वन मतलब ये पहले निकालने का, मतलब ये दूसरे बार, तीन मतलब ये तीसरा. ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ स्टार्टिंग के पांच मतलब ये आ ई उ ए ओ और न, ये छह सीखेंगे कैसे लिखना है वो. ओके, एंड आई गेस यू शुड राइट along with me, want it perfect, because these basics. Okay, so if you don't understand this और ये तुम लोग को नहीं समझे तो बाद में जापानीज बहुत डिफिकल्ट जाएगा. 1 minute. या सो ये तुम लोग को कैसे भी करके याद रखना है. आ ई उ ए ओ कैसे लिखना है, फिर मतलब तुम लोग को पूरा ही चार्ट याद रख, हिरागाना और इसके बाद काताकाना का. पर हम स्टार्टिंग में से पढ़ने वाले विच इज आ ई उ ए ओ. सो you all are familiarized with the strokes now. Okay, the three strokes: stop, release and brush up. सबको स्ट्रोक समझ गए मतलब कैसे करने का वो. Yes. Okay, so now I think you should all open your notebooks. Now start with the first, which is A. तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टार्ट मतलब पेज बुक के स्टार्टिंग में ये सब नोट्स वगैरह लिखो और मतलब बुक के लास्ट पेज से मीनिंग चालू करो, क्योंकि कुछ न्यू वर्ड्स भी सीखेंगे आप. सो आई सजेस्ट दैट end of the book you write the meanings of the words, new word, and in the starting you make notes like this how to write this. Okay, first is A. तो इधर देख सकते हैं फर्स्ट स्ट्रोक ये है हॉरिजॉन्टल वाला और वो स्टॉप. फिर सेकंड है ये, वो भी स्टॉप. और थर्ड है ऐसा रिलीज. सो नाउ आई लिख विथ यू. ओके, द फर्स्ट स्ट्रोक वाज स्टॉप, करेक्ट. Stop. Okay, one stop. Then two. This should be a little curved. Okay, it should not be straight. Stop. Then three. Release. मुझे लैपटॉप पे अच्छे से रिलीज करना होगा, पर तुम लोग को वो पेन लिटरली रिलीज करना है. इट्स देयर शुड बी टैपरिंग एट द एंड. ओके, सो दिस इज आ. So one, a little curve, not line. Then three. There are stop, stop, and release. We'll make again. Yeah. So itchy, stop. Then second, little curve, stop. Then third stroke, release. So this is A. सबने लिखा A. So ये एटलीस्ट नेक्स्ट लेक्चर तक ऐसा 10 बार लिखो. सो तुम एक्चुअल में पता चल जाएगा कैसा अच्छे से लिखना है. So this is A. The first stroke
is stop, second is also stop, and third is release. So the next E. So E कैसा है? E बहुत सिंपल है, सिर्फ दो ही स्ट्रोक है और उसमें है और एक स्टॉप है. सो E should be written brush up and stop. Two strokes, one and two. Here is brush up है और ये यहाँ stop है. There are only two strokes in E and it is quite simple. Okay. So हाँ मैं भूल गया ये बताना. So see here there is a gap. इधर एक छोटा सा गैप है और इधर बड़ा से बड़ा है. ओके. सो ये दो गैप है ना, वो it should not be small. Okay. So you can't R as R ऐसे नहीं लिख सकते. ऐसा रॉन्ग है क्योंकि कुछ गैप ही नहीं है इधर भी और इधर भी. ये छोड़ना चाहिए विच इज क्वाइट स्मॉल हियर, बट यहाँ दो जगह पे गैप नहीं, वो गैप चाहिए. और दूसरा आ में ये है कि आ आप ऐसे भी नहीं लिख सकते, ऐसे ये स्ट्रेट रखना है, विच इज रॉन्ग. I made it wrong one. So this should not be straight. So this is wrong. The second stroke should be a curve. Okay, a little bit of curve. और ये जरा सा बड़ा होना चाहिए, वो इधर छोटा बन गया. The third stroke will be a little big in the case of A. Okay. So E is quite simple. E is just two strokes. One first stroke brush up and then second stroke stop. Brush up and stop. Okay, so this is E. Where next? Wow. So who also has two strokes. One is stop and the second is release. Okay. और ये ऊपर है ना, ये तुम लोग के ऊ के सेंटर के बीच में आना चाहिए, मतलब इस कैरेक्टर के सेंटर में ये आना चाहिए. ये इधर नहीं जाएगा ना इधर जाएगा. ओके. स्टॉप, सिंपल. स्टॉप एंड रिलीज. ओके. सो वापस बनाता हूँ. एंड रिलीज. सो स्टॉप एंड दिस इज रिलीज. सो ये वन, ये टू. सबको अब तक आई ई ऊ समझा? हेलो. And if I'm going fast, then please tell me. Stop for a while for you to write it down. Okay. So ऊ लिख लो.
Sir, E is taken. E is like this. देखो E के ऐसा. 1 minute. Brush. What are you saying? Okay, so ये E तो है. This is E. Move on. Okay, so R, E is done and U. So the common mistake in U is that people make U sometimes like this. इसमें गलत क्या बताओ? इस फिगर में क्या गलत, इस कैरेक्टर में क्या गलती है? इसमें वॉइस लो. हेलो. Am I clear? Your voice is clear. Yeah, correct. So the this line is still left. Okay, it should be at center of O. So ये ना ऐसा होएगा. This is also wrong, and this is also wrong. Okay, so it should be in perfect center. Okay, so it is like this. This is wrong and this is wrong. क्योंकि इसमें वो ऊपर का लाइन है, ये इधर लेफ्ट में है और इधर राइट में है. Okay, so this is R E U. So once again, I'll write from A. Stop, curve, stop, and then release. This is A. Then brush up, stop. This is E. And this, 1 minute. This is U. So A, E, and U. सबने लिख लिया ये A, E, U अब तक. Done. Yeah. So now the next letter, which is A. So this is A. Once again, I'll show you. Stop, stop, then release. Then E is brush up and stop. U, stop, and the second one is release. फिर है A. So A is also simple. If you see, हाँ, ये याद करके रखना क्योंकि ये स्ट्रोक के आपको लिखना पड़ेगा. आप बीच में कहा भी रिलीज नहीं तो बीच में भी स्टॉप नहीं कर सकते. ओके, इट वुड लुक वियर्ड. ओके, so you have to memorize how to write the characters. So this is A. A is simple, 2 strokes. Both. Okay, so one is the line, and then second is this thing. This is also stop. A. A. One stop. Second one also stop.
Okay, A. तो अभी इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या रहते हैं? कुछ कुछ लोग दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, जैसे कि ऐसे करके लिख देते हैं. सो दिस रॉन्ग. देयर शुड बी अ गैप बिटवीन द टू कैरेक्टर्स, द टू फिगर्स. तो इसके बीच में गैप होना चाहिए. किसी देयर इज अ गैप. ये गैप मस्ट है, नहीं तो कैरेक्टर है. और ये सेम ऊ के इसमें भी ये होता. ऊ के बीच में भी यहाँ गैप होना चाहिए, नहीं तो वो रॉन्ग हो जाए कैरेक्टर. कुछ कुछ लोग जल्दी जल्दी में ऊ ऐसा लिख देते हैं. So see, there is a little gap. Okay, so ये gap अच्छा खासा होना चाहिए. It should not be that small. So this is correct, but this is wrong क्योंकि इसका gap बहुत कम हो गया. So there should be enough gap between the two figures. Okay. और दूसरा एक केस में है, कुछ कुछ लोग फैंसी हो जाते हैं. मतलब वो लास्ट का कर्व है, वो कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं कि ये रॉन्ग. ये ऊपर करने की जरूरत नहीं है. Okay, it's the curve should end downwards, not upwards. Okay, so please make you don't make it like this. ये गलत है. You should not make it like this. Be downwards. So this is A. Okay. So you can see there is a gap between. Okay, so don't forget the gap. And the second one is don't make it upwards. Okay, don't make the last curve go upward. So the next of the final vowel O. So okay, तीन strokes है. The first one is like this, then the second one is like this, and the third one is a line in the right side. Okay. So till now we have discussed A, E, U, and A. A. ये इसमें गलती है, क्या बताओ? मैं इसमें क्या गलती किया, ऐसा मिस्टेक किया? या किस या करेक्ट. इधर दोनों में इस मेरा गैप कम हो गया. और इवन यू कैन सी द थर्ड स्ट्रोक इज वे बिलो. ये इतना नीचे नहीं आना चाहिए था. Okay, तो इधर दो मिस्टेक्स मैंने बना दी. It's a little difficult to draw in laptop. So A, then sharp and E, then U, and then A. 1 minute, I made A wrong. Okay,
सो आ, ई, ऊ एंड ए सबने लिखा अब तक ये चार. So the next one is O. So ये है O. इसमें तीन स्ट्रोक्स है. The one first one is stop, then the second one is release, and the third one is also stop. Okay. So 1 minute. हो गया O. Okay. So इसमें 1 minute I'll make again. First is stop, then the second one release, the third one is stop. Okay. So this is O. तो इसमें कभी कभी ऐसा लिखता है, मतलब वो ये स्ट्रेट लाइन है वो ऐसा होता है. So this should not be in center. This thing should not be in center. It should be the left side, and this should be in the right side. Okay. So वो सेंटर में लिखना. ये ऐसा गलत है. ये लाइन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए और इतना बड़ा कैरेक्टर भी बड़ा होना चाहिए. Okay. In case you are making it big, then it should be like this. ये लेफ्ट में ही होना चाहिए. ये नहीं जाना चाहिए ना राइट में जाना चाहिए. और ये है वो होना चाहिए. और ये डैश का और ये है. ये डैश इस लेवल में आना चाहिए, इसके लेवल में, और ये इसके लेवल में. ठीक. ये डैश इसके नहीं जाना चाहिए ना इसके इस कैरेक्टर के ज्यादा पास आना चाहिए. नहीं, ऐसा लिखना भी गलत है. ऐसा इट्स रॉन्ग. ये आना चाहिए. So this is O. So this is how you write the basic vowels. The first one A, then E, then U, then A, and O. Okay. So A, E, U, A, and 1 minute. O. Okay. E, U, A, U. और हिरागाना में एंड इवन इन काताकाना ये वॉ से ही बाकी सभी बने हैं. जैसे कि यहाँ देख सकते हो आ, ई, उ, ए, ओ. फिर नेक्स्ट इधर के का ये है, के साउंड है. बट इसमें बोलते समय वो काकी को. फिर नेक्स्ट साशी सु से सो. देन नेक्स्ट इज ताची सु ते तो, नॉट टू. ओके. वो मैं बाद में बताऊंगा. फिर ये है नानी नू ने नो. हा ही फू हे हो. हु नहीं रहता उनके इसमें.
फिर मा मी मू मे मू, देन या, नो ई, देन यू, देर इज नो ये एंड देर इज यू। ओके, सो या यू यू, उनमें ई और ये नहीं है। फिर आर का है रा री रू रे रू, और फिर वा वी नहीं है, वो है, वे नहीं है, और फिर वो के, सो वा और वो ही है, वो नहीं है। और फिर सो ये हो गया आ, ई, ऊ, ए एंड ओ। ये सबने लिखा अब तक? सबने 5 वॉवल्स लिख लिए? ओके, so please don't forget the stroke order and the strokes. Okay, you should always remember the stroke order and strokes, because if you write it in any other way then the letter would be wrong. मतलब अ, वो अच्छा नहीं दिखेगा। rather stroke order is also important and strokes are also important। इधर रिलीज के जगह पे स्टॉप तो गलत है, इधर स्टॉप की जगह पे रिलीज किया पेन तो गलत है। एंड ऑल्सो किन किन लोगों को ब्रशअप बहुत फैंसी लगता है, तो वो कहाँ भी ब्रशअप कर, जैसे कि मैं लास्ट टाइम भी ए केस में बोला था। ओके, ए केस में वो ब्रशअप नहीं है, वो डाउनवर्ड जा रहा है। ओके, सो डोंट डू द ब्रशअप। इसमें ये कर्व लाइन करना है, डोंट मेक इट स्ट्रेट, और देयर शुड बी गैप बिटवीन दिस टू स्पेस। देन ई केस में, हाँ, ई का मैं बताना भूल गया। सो ई में इन दोनों फिगर्स के बीच में स्पेस होना चाहिए। ओके, ये ज्यादा पास नहीं होना चाहिए और ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ओके, सो ई ज्यादा आ गया, ये गलत है, और ये गलत है। देयर शुड बी मॉडरेट स्पेस विद दिस टू फिगर्स। इधर ज्यादा हो गया, इधर का बी लाइक दिस, बीच में इनफ स्पेस होना चाहिए, ज्यादा ना कम। कि इफ एनीवन हैज रिटन रॉन्ग देन प्लीज करेक्ट इट। मैं बताना भूल गया था ये, कि वो ई में वैसे लोग रॉन्ग लिखते हैं। फिर नेक्स्ट है ऊ में, ये ऊपर की लाइन बीच में आनी चाहिए, ना राइट में लेफ्ट में, बीच में। और वापस स्ट्रोक ऑर्डर और स्ट्रोक्स इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट इज ए। ए के इसमें मैं पहले बोला हूँ वैसे, ये ब्रश अप नहीं है, ये रिली स्टॉप है। शुड स्टॉप एट दिस पॉइंट, डोंट मेक द ब्रश गो अप, डोंट डू ब्रश अप। फिर ओ के इसमें ये है, वो लेफ्ट में होना चाहिए, नॉट राइट नॉट सेंटर, एंड दिस लाइन शुड बी इन दिस लेवल। ओके, फिर द नेक्स्ट इज न और हम लोग हिंदी में ये रहता है ना, ये ऐसा कैरेक्टर रहता है, वो है ये। इट कैन बी न और सो में ये कैरेक्टर आता है सिर्फ काताकाना में, यहाँ हिरागाना में। okay, so न is quite simple, only one stroke। There is only one stroke, one, and then release। So न is quite simple, then release। It should be release, huh? See, न release। Hello, 1 minute, huh? It's not like H, इधर ये स्पेस ज्यादा होगा,
It's not like H, okay? It's not like a cursive H. Similar to that, but it's not like, okay. So this is no. So सबने आ ई उ ए न लिखा. Hello. So you are writing letter N now. This is not actually N, okay? It's no. How is? आप मुंबई लिखते समय ऊपर वो डॉट लगाते हो ना, वो है. In for example, my name, there is संकल्प है. It's संग, वो ऊपर न का ये आता है, वो ये न है. समझा? It's not the letter N, okay? So okay, so now मैं वो let and what आप मैं हिंदी में बताया ना कि इट्स लाइक लेटर एन, बट उसमें ये नहीं कर सकते, मतलब ना अभी से हमको ना के लिखना है, तो फिर उसमें ये वाला लेटर नहीं यूज होगा, उसमें ना यूज होगा, ओके. उसमें ये वाला लेटर कैरेक्टर यूज होगा. One minute, one minute. नागासाकी में ना यूज होगा, नॉट नो. उसमें ये कैरेक्टर यूज होगा. हाँ, अनुस्वार करेक्ट. थैंक यू मैम. So now I'll write the character and you have to guess what the character. Okay. What is this? Correct. E. Then what is 1 minute? क्या हो रहा है? Wait a second. What is this character? Correct. So this is O. Then what is this? A. Correct. What is this character? A. Correct. What is this? Correct. So now you have to read the letters which I have written.
सो ये कैसे प्रोनाउंस करोगे अभी? नाउ वी हैव, आपको है हर एक लेटर को कैसे प्रोनाउंस करना है, तो ये एक वर्ड है, इसको कैसे प्रोनाउंस करो, एंड ये हो गया हम लोग का। तो राइट द प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश। ओनली वन आंसर। करेक्ट, इट्स आ ओ एंड देन, सो इधर तीन लेटर्स, आ, देन ओ, एंड ई। तो आ ओ, सो आओ मीन्स ब्लू। ये मैं आपको क्लास में जब कलर्स ले रहा था तब बोला। सो आओ इज ब्लू। सो नाउ द नेक्स्ट वन, इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? हाँ, तो ये ऊ और ए, उए, टॉप और अबव। मतलब आपको बोलना है बुक ऊपर है, तो तेबरून मतलब टेबल, तेबरुनो उएनी होंगा ऑन हिज बुक, सो द ते बुक आहे असं ह्याच्यामध्ये बोललो आपण, द बुक ऑन द टेबल। सो वो ऐसा यूज होता है। फिर नेक्स्ट वन, हाउस, ये करेक्ट। ले, इट्स ये, लेनी है, करेक्ट, सो इट्स ये इज हाउस। ओके, सो अब मैं बोलूंगा कि मेरा घर वाइट कलर का है, तो बात हूँ ये वा आओई दिस, माई हाउस इज ब्लू। ओके, सो आओई भी यूज हो, सॉरी वाइट कलर मैंने मैं गलती से वाताशी नो ये वा शिरोई दिस, which is my, okay, sorry, my house is white। फिर द नेक्स्ट, ये कैसे प्रोनाउंस करोगे? आपको क्या बोलना है निधि, बांगो? लीव इट, सो ओके, इट्स ये ई ए है, ए नहीं बोलेंगे इसको, ई ए बोलेंगे। इफ देर आर कोई भी लेटर के आगे ई लगा दे तो प्रलंग होगा, मतलब ई के इसमें प्रलंग होगा। सो फॉर एग्जाम्पल ये लेटर है, ये है की, दिस इज की, और इसके आगे लगा है तो की होगा। एंड इट्स सेम इन ऑल द वॉवल्स। ओके, सो अभी इधर आ रहता तो उसके आगे आ लगा तो का हो जाएगा। सो prolongs the sound. Okay, so it's not EEA, it's EA, which is no. फिर next is quite simple. Correct, A means picture. Okay, so OE, which is blue, OA, which is top, EA, which is house, EA, which is no, and then A. तो आप अभी मैं बोलूंगा वो आपको लिखना है। Okay, as a practice, how will you write blue? Blue. Just write it in the notebook. You don't have to show me.
आफ्टरवर्ड्स आई मतलब मैं आपको, आपका गलत हो रहेगा तो मैं आपको इधर वापस लिखने वाली। सो ब्लू, अगर आपको कोई बोला ब्लू लिखो तो इट शुड बी आ ओ ई। ओके, सो दिस इज ब्लू। उए, विच इज, उए मतलब क्या? उए मतलब क्या? करेक्ट, टॉप। टॉप और अबव, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिख दिया था, एबनो उएनी होनगारिमस, होनगारी। सो टेबल के ऊपर बुक है। okay, ये हुआ उए। फिर ये मतलब क्या? Okay, yeah, I'll present it afterwards. First, we'll do this. ये इज हाउस, तो इसमें बोला था कि मेरा घर वाइट है, तो वाताशिनो ये वा शिरोई देस। वाताशिनो मतलब मेरा, ये मतलब घर, शिरोई मतलब वाइट, देस मतलब है। मेरा घर वाइट है। सो उसके बाद ई। नो, करेक्ट। ओके, सो ये तुम लोग याद रख लो, से बोलते हैं, और हा को हाई बोलते हैं। ये है हाका, और ये है आ ई, मतलब यस। ये याद रख लो। दिस इज नो, एंड दिस इज यस। सो हाई और ई। फिर नेक्स्ट था सिर्फ ए, मतलब क्या? सिर्फ ए। करेक्ट, पिक्चर। सो अब ना कि पेंटिंग नहीं, तो ये पिक्चर बहुत अच्छा था। सो सोरेवा, सोरेनो एवा किरेदिस, मतलब ब्यूटीफुल है, मतलब वहाँ का अच्छा है। सूर्य इज वहाँ, चिनो मतलब वहाँ का, ए मतलब पिक्चर, किरे मतलब ब्यूटीफुल, दस मतलब है। सो वहाँ का पेंटिंग ब्यूटीफुल था। ओके, सो दिस, किसको तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। और ये तुम लोग को वर्ड्स सब पीछे लिखना है बुक के, बिकॉज दिस आर ऑल न्यू वर्ड्स। लिया स्क्रीनशॉट? या नाइस। या okay, सो यहाँ, यहाँ योमी माशो लिखा। ओके, ये ऊपर है ना, ये योमी माशो, सो योमी माशो इज लेट्स रीड। ओके, आज हमने क्या किया? वॉवेल्स और न, ये सीखा। सो आ, ई, उ, ए,
ओ एंड न और अनुस्वार। सो ये एटलीस्ट 10 टाइम्स लिखो नेक्स्ट लेक्चर तक सब लेटर्स। Okay, so is it fine? So will you write 10 times? Because these letters are very important. This is the basic Japanese letters. Okay, you have to learn them. So that's it. Arigato gozaimasu. Sankalp, I am just don't close. I have something to say. Okay. So I'm audible to all of you. Just put in chat box. Okay, great. So see, today we have introduced some new people who are genuinely interested in Japanese language, maybe having interest to join sometime there or to work in some organization which requires Japanese knowledge, whatever it may be. Whether it is a selfish, whether it is selfless, or it is something which is intended for betterment of society, is always acceptable. तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो लोग जापानीज क्लास सीखने आए तो एक चीज 100% माननी हो वो है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन के मामले में कोई भी टॉलरेंस नहीं दिया जाए। इट इज समथिंग लाइक जो फॉलो करना है वो करना। 5 बजे की क्लास है, 5 बजे के पहले 2 मिनट एंट्री करनी है और क्लास खत्म होने के बाद शांति से लीव करना है। ये जो आपके डाउट्स है वो चैट बॉक्स में लिखने हैं। सर जब बोलेंगे कि आप अपना माइक ऑन करके मेरे से बात कर सकते हो तब उसी फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में आपको फटाफट माइक ऑन करके बात करनी और इमीडिएटली आपका माइक स्विच ऑफ करना। ये तरीका ही हम फॉलो करते हैं। तो नए लोग जिनको ऐसे लगता होगा कि मुझे बहुत आता है या जिनको ऐसे लग रहा है ये सही नहीं चल रहा है, यू आर फ्री टू ट्वीट एनी टाइम, बट एनी ट्वीटिंग एनी टाइम विदाउट एनी इंडिकेशन will lead to the complete and total rejection of future classes. तो जापानीज के साथ आपको जापानीज लोगों की डिसिप्लिन भी सीखनी है जो स्पेशली स्टार्ट होती है बिहेवियर और टाइम डिसिप्लिन। ये सारी चीजें अगर आपके समझ में आ रही है तो आपके लिए क्लास बेहतर होगा। जस्ट गिव मी सेकंड, ओके। फिफ्थ एंड एट स्टूडेंट कैन लीव इमीडिएटली बिकॉज उनका क्लास है 6 बजे का। बाकी लोगों के लिए मैं और 1 मिनट लूंगा, एक नहीं आधा मिनट। ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी लैंग्वेज सीखना हो तो एक चीज बड़ी जरूरी है कि आप उस लैंग्वेज से कंटिन्यूअस बेसिस जुड़े रहे। कैसे? जब आप दिन भर कहीं कुछ सुन रहे हो देख रहे हो तो वो लैंग्वेज से रिलेटेड होना चाहिए। कहीं रात को सोने के पहले अगर आप उस लैंग्वेज के बारे में सोचेंगे, मन ही मन जितना विचार करते हैं वो अगर उस लैंग्वेज में करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो घूमता रहता है और फ्यूचर में ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ये बहुत हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें संकल्प सर थोड़े नए हैं तो आपको बता नहीं पाएंगे और मैं ऑफिस टाइम के चलते आपसे नॉर्मली कनेक्टेड नहीं रहूंगा। इसके कारण आपको कोई भी डाउट है तो आपके पास मेरा नंबर है, आप संतोष टकले, आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप से मैसेज भेज सकते हो। तो आज का संकल्प सर कैसे रहा डिसिप्लिन पैटर्न, ठीक था? Yes, sir, it was fine. Yeah. So hopefully they cooperate like this, but any nuisance, don't tolerate. Just let me know and we will take the disciplinary action because people should not feel कि फ्री है तो फालतू है। फ्री है तो बेहतर है, ये नजरिया अपने देश में और डेवलपिंग नेशंस में बहुत कम। तो फ्री है मतलब आओ जाओ पर तुम्हारा ये एटीट्यूड बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हो। आप अपना वीडियो जब फिर से रीचेक करते हो तो उसका जो टेक्स्ट पार्ट है उसमें अटेंडेंस और रिस्पॉन्स शीट को जरा देखिए ताकि ये समझ में आए कि कौन ठीक से चल रहा है और कौन सिर्फ टाइम पास के लिए एंट्री कर रहा है। ओके, सो एनीवेज थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट कॉन्वर्सेशन विद यू ऑल from my end was not very goody goody, but can't help it because certain things need to be told in a time so that it can be followed and particularly the efficiency of classes and output of the total program goes well. So thank you again, thank you very much. Tata bye bye. Now everybody can leave. Thank you so much. हेलो। बोलिए तो सर। स्क्रीन सर को तो स्लाइड देखना तो मैं दिखा के लीव कर सकता हूँ। Yeah, no problem, no problem. Please, then I will leave. Okay, thank you.
यस सर। Okay. हाँ तो ये स्लाइड्स देखिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एटलीस्ट ये नेक्स्ट स्लाइड पे ये जा सकता। हेलो। ओके नेक्स्ट ई लिया ई का ए देन ऊ देन ए देन ओ एंड ई। लिखा लिया स्क्रीनशॉट। Sayonara everyone, you can leave now.